Hello everyone. Let's start the question. Question says that the stream of a river is flowing with a speed of 2 km per hour. A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of swimmer with respect to the flow of a river to cross the river straight? Okay. So let's understand the question first. Let's say this is the river and a man want to swim and want to cross the river from this position. So this position perpendicularly, okay, from A to B. But here the direction of flow is like this, which is 2 km per hour. Okay. So if he swims straightly, then the stream will force the man towards right. Okay. So he won't be able to cross from A to B straightly. Okay. So he will take certain angle in this direction, okay, so that he can cross. The resultant will be, if the resultant will be in this direction and he swims in this direction, then he can cross from A to B without any diversion. Okay, so this is 90 degree. So in this question it is given 4 km per hour. Okay, so we have to find out, in the question it's asking, we have to find out this angle, that is the angle with the river. Okay, so first you need to find out this angle, let's say theta. Okay, so from this equation if we see this is theta, then sine theta will be the velocity of the river or stream divided by velocity of man swimming. Okay, so here we can write 2 by 4. Okay, so sine theta is equal to 1 by 2. Now when the theta is sine theta is 1 by 2, when theta is equal to 30 degree. So this is 30 degree, but question has asked that we have to find out the angle between the man and the river. Okay, or we can say with the flow of the river it will be the same. Okay, so it will be the angle, the direction will be, it is 90 degree, so 90 degree plus theta. Okay, so if we write here 90 plus 30, it will be 120 degree. So with respect to flow of the river, if the man takes 120 degree, then he will be able to cross from A to B, okay, perpendicularly. So if we see the option, the correct answer is 120. So we can write correct answer is 120 degree. Thank you. Hello guys, in this session we are going to solve JEE Main Physics problem. So the problem given to us is a person standing on an open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with ground level. ठीक है, ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे कोई प्लेन है जो नॉर्थ से आ रहा है. ठीक है, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन. ठीक है, लेट अस से प्लेन इस तरह से मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेन है, लेट अस अज्यूम इस डायरेक्शन में प्लेन मूव कर रहा है. पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसकी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इस तरह से 60 डिग्री पे आपके पास ऑब्जर्वर यहाँ पे है. ठीक है, और
इस तरह से वो जब ऊपर देखता है तो उसको प्लेन इस कंडीशन में अपने ऊपर नज़र आता है, ठीक है। तो एक प्लेन है जो, लेट अस अज्यूम दिस इज डायरेक्शन नॉर्थ, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो देखता है कि उसको इधर से नॉर्थ से 60 डिग्री पे वॉइस आ रही है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है तो प्लेन को यहाँ पे पाता है, ठीक है। तो प्लेन जो यहाँ पे है, प्लेन पहली पोजीशन में, उसने यहाँ से साउंड छोड़ा, ठीक है, यहाँ से उसने साउंड छोड़ा और साउंड ने कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट अस से दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो जब प्लेन ने साउंड छोड़ा तो यहाँ पे इस पोजीशन में पी पॉइंट पे जब प्लेन ने साउंड छोड़ा तो वो साउंड ने ट्रेवल किया ए बी ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उतने टाइम में प्लेन कितना ट्रेवल कर गया, प्लेन ट्रेवल कर गया AC, ठीक है। प्लेन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, क्योंकि जब ऑब्जर्वर ने अपने ऊपर देखा तो उसको प्लेन जस्ट ऊपर मिला, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सो हुआ क्या है, जो टाइम, जितने टाइम में प्लेन ने AC डिस्टेंस चला है उतने टाइम में प्लेन ने क्या, वॉइस ने, साउंड ने क्या किया है, AB डिस्टेंस चला है, ठीक है। जितने टाइम में प्लेन ने AC डिस्टेंस मूव किया है उतने टाइम में साउंड ने AB डिस्टेंस मूव किया है। तो अपन यहाँ से इस डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू, जो कि आपके पास आएगी सीधी सीधी AC अपॉन AB, ठीक है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये टाइम टेकन है AC डिस्टेंस चलने में और टाइम टेकन है AB डिस्टेंस चलने में, वो बराबर है, ठीक है। ये टाइम टेकन बाय प्लेन है और ये टाइम टेकन बाय साउंड है। तो देखो टाइम टेकन क्या होता है, टाइम टेकन को आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय इन कवरिंग AC डिस्टेंस इज डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाय स्पीड AC डिस्टेंस किसने कवर किए, AC डिस्टेंस कवर किए प्लेन ने, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन या स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू होगा AB डिस्टेंस जो कवर की है वो किसने की है, साउंड ने, तो साउंड की स्पीड है V, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन अपने पास है AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज AC बाय AB, ठीक है। यहाँ से भी हम AC बाय AB की वैल्यू लिख सकते हैं, AC बाय AB इज इक्वल्स टू VP वेलोसिटी ऑफ प्लेन बाय V, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एक रिलेशन। तो AC बाई AB की वैल्यू यहाँ से 1/2 रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो होगी, स्पीड ऑफ प्लेन होगी, वो आ जाएगी V/2। सो V/2 इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ प्लेन, ये आपको आस्क किया गया था इस क्वेश्चन में कि कितनी स्पीड से प्लेन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। So let us solve this question. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि a boat which has a speed of 6 km/h in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 20 minutes. The velocity of the river water in km/h is. हमारे पास एक रिवर है, उसकी विड्थ हमें कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर की। तो ये जो हमारी विड्थ है इसकी, ये हमें 1 किलोमीटर दे रखी है। अब हमारे पास एक बोट है, द बोट हैज ए स्पीड ऑफ 6 km/h इन स्टिल वाटर। अब हो यहाँ क्या रहा है कि इस जो रिवर फ्लो है उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेट अस से वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो अब अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ से करनी है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, एकदम परपेंडिकुलर वाला, ये वाला। तो इससे करने के लिए उसको कुछ इस एंगल पे जाना होगा बोट की जो स्पीड है इधर 6 km/h, वो कुछ इस एंगल पे होनी चाहिए, ताकि अगर उसका वेलोसिटी अगर उसको इधर की तरफ भी लेके आए तो उसका जो रिजल्टेंट आए वो हमेशा इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये एट एन एंगल थीटा पे जा रही है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 cos थीटा, और ये वाली वेलोसिटी हो गई 6 sin थीटा। अब वो जा इस डायरेक्शन में रही है, तो ये वाली वेलोसिटी और जो रिवर की वेलोसिटी है v, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल्स टू 6 sin थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब वो ये जो पूरी रिवर है ये कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स। तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है उधर, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है हमारा डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है बोट का 6 cos थीटा इनटू टाइम्स को कितना लग रहा है 1/3 आवर्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन, डेट इज
cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/6 दैट इज 1/2। तो हमारा यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री, सॉरी थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। cos 60 इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता लग गई थीटा की। तो हमें अब क्या पता लग जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें बस इसको यहाँ पे पुट करना है। तो हमने जब थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू 6 sin 60 दैट इज 6 इंटू साइन 60 होता है हमारा √3/2। तो ये आ गया हमारा 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आ गई, 3√3 मीटर पर सेकेंड। Hello everyone. Here the question is, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south block of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in shortest time. He should swim in the direction। तो ये हमको क्वेश्चन रे कौन कहला ना गोटे रिवर अच्छी तो सी को डायरेक्शन रे अछि। सपोज ये हम डायरेक्शन को देखिदबा, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। ताले एठी हमर गोटे रिवर अच्छी, ए रिवर रे वेलोसिटी केते अछि, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 5 मीटर पर मिनिट, 5 मीटर पर मिनिट अच्छी। एंड गोटे पर्सन कौन अच्छी, से साउथ ब्लॉक रे अच्छी, साउथ डायरेक्शन रे अच्छी। तार यदि स्टिल वाटर रे से को डायरेक्शन तार वेलोसिटी केते अच्छी ना 10 मीटर पर मिनिट। तो 10 मीटर पर मिनिट अच्छी यार वेलोसिटी, जोटा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर। देन एठी हमको कहिची he wants to swim across the river in shortest time। कम टाइम रे से रिवर को क्रॉस करिया पय चाहूची, मींस ए कम समय रे मींस सबटो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल करिया दरकार। तो 8 होती कि माने कर तार रिवर डेप्थ ब्रॉड होची, ब्रेड्थ होची d। देन ताहले एठी सपोज माने करो स्विमर कोन करची ए डायरेक्शन रे स्विम करची, vs डायरेक्शन, जे कि याको कौन करछि थीटा एंगल बनाउछि। लेट द शॉर्टेस्ट टाइम इक्वल टू t। ताले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होबो केते है, विड्थ ऑफ द रिवर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू सपोज हम ताकू नेले d। ताले ए डायरेक्शन रे तुमरो d डायरेक्शन रे तुमरो वेलोसिटी कोन रहउछि, component of velocity of swimmer in the direction of shortest distance केते अछि ना वेलोसिटी ए डायरेक्शन रे केते रहबो ना तार cos कंपोनेंट रहबो इक्वल टू vs cos थीटा। ताहाले एठी स्विमर जितेले मोशन करूची ताहाले तार टाइम केते हबो ना टाइम इक्वल टू हमें कोन जानि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ताले एठी हम शॉर्टेस्ट टाइम को केते नैछि ना t नैछि। ताले t इक्वल टू डिस्टेंस केते अछि, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d अछि, वेलोसिटी केते अछि vs cos थीटा। ताहाले एठी हमर टाइम कोन हबो मिनिमम हबो, शॉर्टेस्ट को जी कम हबो। ताले फॉर टाइम शुड बी मिनिमम, टाइम को जदि कमेबार अछि ताले एठी हमर d तो कांस्टेंट अछि, vs भी कांस्टेंट अछि, ताले cos थीटा टा कोन हबो ताको इंक्रीज करार अछि। तो एठी लिखिबे फॉर t शुड बी मिनिमम that means cos theta should be maximum, cos theta should be maximum। ताले एठी मैक्सिमम वैल्यू केते बेले हबो ना cos theta रो मैक्सिमम वैल्यू केते ना
cos थीटार मैक्सिमम वैल्यू आम जानते जो cos थीटार ग्राफ ड्र करवा तो देखिए थीटार वैल्यू 1 2 एमती था ग्राफटा तो एठी ये रहिला थीटा एपटे है cos थीटा तो एठी आम वैल्यू पाइले 1 एठी पाइबा -1 तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1 ताले ये केतेले हुए cos थीटा इक्वल टू cos 0 रे 1 हुए ताले थीटार वैल्यू केते हला ना 0 ताहाले एठी आमे एंगल केते नै थिले ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d और vr मध्य एंगल नै थिले जोटा कि थीटा जहा कि 0 आसला मींस सी को डायरेक्शन रे मूव करबो ना व्हेन थीटा इक्वल टू 0 means swimmer will move or swim in northward direction रे move करबो northward direction तले हम एठी देखिबा को ऑप्शन रे हमरा नॉर्थ डायरेक्शन देछि एटी फर्स्ट ऑप्शन रे हमर देछि ड्यू नॉर्थ दिस इज द फाइनल आंसर थैंक यू हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एरोप्लेन है ए और बी, ठीक है ना, दोनों जो फ्लाई कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और ना एक का जो है ए का जो है एंगल है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है और बी का एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद बोला हुआ है कि स्पीड ऑफ ए जो है ना, स्पीड ऑफ ए दे रखा है 100√3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है एट ए टाइम t इक्वल टू 0, और जो है कह रखा है कि ऑब्जर्वर ए जो है ना वो फाइंड करता है कि बी जो है ना डिस्टेंस 500 मीटर पे है, ठीक है, और ऑब्जर्वर क्या फाइंड करता है कि बी जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, ठीक है, और बोला हुआ है कि इफ t इक्वल टू टी नॉट पे ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, तो टी नॉट हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ ए था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था। मान लेते हैं अब दूसरा वेलोसिटी ऑफ बी भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बी भी फ्लाई कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ बी है, तो इसका जो हम दो एंगल में तोड़ते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर तोड़ते हैं और इसके एक पैरेलल तोड़ते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ना इसके एक पैरेलल कंपोनेंट है, मैं अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा था, इसको दिख रहा था परपेंडिकुलर जाते हुए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि इसके पैरेलल जाता है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये जो है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, ठीक है, तो और ये जो कितना डिग्री था 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये 30 डिग्री होगा। मैं इसको ब्लैक पेन से बनाता हूँ, ये एक्चुअली 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो बचा हुआ एंगल जो है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपको, ये 30 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री। तो इसका वी का एक का कॉस थीटा टूटेगा, यानी कि ये जो है ना वी का कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा और ये जो है वी का साइन ऑफ 30 डिग्री होगा, क्लियर है। अब जो है सबसे पहली बात यहाँ पे कह रखा है कि यहाँ पे जो है ना देखिए ये इसके परपेंडिकुलर जाता हुआ दिख रहा था, यानी कि ये वेलोसिटी बराबर होगा, तभी इसको सिर्फ यही कंपोनेंट दिख रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है 100√3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी कॉस 30 कितना होता है √3/2। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हमें टाइम फाइंड करना है कि जो एकदम थोड़ा सा जस्ट एस्केप हो जाए, ठीक है। टाइम टी नॉट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो ऑब्जर्व कर रहा है 500, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा वी का साइन ऑफ 30 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना इसके परपेंडिकुलर में जा रहा था और इसको ये कंपोनेंट दिख नहीं रहा था क्योंकि ये इसके रिलेटिव में है, तो इसको लगेगा कि ये इसको हीट कर रहा है, ठीक है, इसको लगेगा ये इसको हीट कर रहा है, इसीलिए ये कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इक्वल टू 500 अपॉन वी जो हम फाइंड कर चुके हैं 200 इंटू साइन ऑफ 30 जो कि होता है हाफ।
अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास टी नॉट का वैल्यू आ जाता है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी नॉट इज इन सेकेंड इज 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। According to question, a frictionless horizontal surface assumed to be xy plane. Okay, so xy plane is horizontal frictionless surface. A trolley A is moving along a straight line parallel to y-axis. Okay, so that axis is moving parallel to y-axis, and the velocity of that trolley is root 3 minus 1 meter per second. Okay, at a particular instant when line OA makes angle 45 degree with x-axis. Okay, so a ball is thrown along surface from origin O and its velocity makes angle phi with x-axis and it hits the ground. Oh sorry, it is the trolley. So the motion of the ball is observed from frame of the trolley. Calculate angle theta made by the velocity vector of the ball with x-axis in this frame. So the ball if observed from the frame of the trolley, so we have to find the theta made by velocity vector with x-axis. So first of all we will draw that motion of the trolley. So according to question, that object is that plane is in y x plane, so that is the y and x. Okay, and that trolley is moving parallel to y axis. Okay, so that is the direction of trolley, and that velocity is with respect to ground. Okay, so that is the origin and that angle is 45. Okay, let's assume that point is A and that point is B and that is M. Okay, so that will be the direction of velocity of the ball with respect to trolley. Okay, and that will be velocity of the ball with respect to ground, because according to question that ball is hit the ground hit the trolley after some time, it means that will be angle phi and that phi will be greater than 45. Okay, so if vbt is the velocity of ball with respect to trolley and vbg is velocity of the ball with respect to ground and vtg is the velocity of trolley with respect to ground. So relation among these quantities is, so we can say velocity of ball with respect to trolley plus velocity of the trolley with respect to ground is equal to velocity of the ball with respect to ground. Okay, it means velocity of ball with respect to trolley will be equal to velocity of ball with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground. Okay, now in the diagram, that is OB vector, that is OA vector, and that is OB vector. So in the diagram, OA vector plus AB vector is equal to OB vector, means OA vector is equal to OB vector minus AB vector. So when we compare these two equations, that equation 1 and that is equation 2. So in that equation, if OB is represented with
velocity of ball with respect to trolley, and OB is represented as velocity of ball with respect to ground, and AB is represented as velocity of trolley with respect to ground. So in that condition, OB is direction of the velocity of ball with respect to trolley. So in that condition, angle with x-axis will be 45. So we can say that theta, the velocity vector of the ball with respect to trolley, will be equal to 45 degree. Okay, so that is the answer of first part. Now in second part, they have given that if we have to find the speed of ball with respect to surface if phi is equal to 4 theta into t. So the phi, according to question, phi is equal to 4 theta upon 3. Okay, and we have find the value of theta, means 4 into 45 upon 3, it is 60 degree. Okay, so if that ball is projected at 60 degree with respect to ground, so we have to find the velocity of the ball with respect to ground. Okay, so in that triangle, that phi, if that phi is equal to 60 degree, okay, if that is equal to 60 degree, that is 45, that is 90, it means that will be 45 degree. Okay, so in that condition, that angle is 135 degree. So opposite of VG is angle 35, and opposite of VTG, velocity of trolley with respect to ground, that opposite angle is 15 degree. So using sine rule, we can solve that equation and find the value of VBG. So using sine rule, okay, in that condition, velocity of ball with respect to ground upon sine 135, that should be equal to velocity of trolley with respect to ground, and opposite angle is 15 degree. Okay, and velocity of trolley with respect to ground is root 3 minus 1. So VBG is equal to VTG into sine 135 upon sine 15 degree. Okay, so VTG is root 3 minus 1 into sine 135 will be equal to 1 upon root 2 upon sine 15 degree is root 3 minus 1 upon 2 root 2. Okay, so by simplifying the relation, we will get 2 meter per second, means velocity of ball with respect to ground is 2 meter per second in that given condition.